اپنے ساتھ والے سے بولے آج خداوند مجھے برکت دینے جا رہا ہے. اسے بولے آج کا کلام میرے واسطے ہے. ہاللیلویا. کلیسیا یاد رکھیں، آپ میں سے ہر ایک کو خداوند نے چنا ہوا ہے. ہاللیلویا. کوئی بھی خداوند کے چننے سے باہر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو خداوند نے اسپیشل چنا ہوا ہے. آمین. لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور فرزند کا حق سیم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، ہر ایک فرزند، ہر ایک بیٹے کا حق سیم ہوتا ہے. کوئی نیچا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. آمین. تو جتنوں نے اسے قبول کیا ہے، اس کے نام کو قبول کیا، اس کا بپتسمہ لیا، اور جو مسیح کے نام پر چلنے کا آپ نے ارادہ کیا، آپ فرزند ہو. اپنے ساتھ والے سے بولو آپ یسوع مسیح کے فرزند ہو، آپ خدا کے فرزند ہو. اور جب آپ خداوند کے فرزند ہو تو خداوند اپنے سارے فرزندوں کو سیم دیکھتا ہے. اب میرے ساتھ ہیں، خداوند جو ہے وہ سب کو سیم دیکھتا ہے، لیکن بندے جو ہیں وہ فرق دیکھتے ہیں. اور وہ کیسے فرق دیکھتے ہیں؟ فرق آنکھوں سے. کیونکہ جتنا وہ کلام کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اور پرکھتے ہیں، اتنا وہ فرق دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن خدا سب کو سیم دیکھ رہا ہے. ہاللیلویا. خدا سب کو سیم دیکھ رہا ہے، لیکن ہم سب ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جتنا اسے جانتے ہیں اس قدر ہم اس کو دیکھتے ہیں. جتنا ہم اس کو پہچانتے ہیں، جتنا ہم ڈھونڈتے ہیں، اس قدر ہم جانتے اور دیکھتے ہیں. آج خداوند کچھ برکت دینے والا ہے ہمیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل اور اس کا 4 باب. اور اس کی 12ویں آیت سے. لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 17ویں آیت سے، 17 ورس سے. اب میرے ساتھ ہیں، میرے پیچھے پڑھیں. اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. ایک بار پھر سے. اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا خداوند کا روح مجھ پر ہے. میری طرف دیکھیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو اس میں سے کیا ڈھونڈتے ہیں؟
جب بھی آپ اپنی بائبل کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے یا کلام لگاتے ہیں سننے کے لیے، تو اس میں سے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کدھر ہوں. ہالےلویا. لکھا ہوا ہے کہ یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اس کو کتاب پکڑائی گئی ہے، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا ہے جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے. آمین. تو ہر کوئی جس کو خداوند نے کلام مقدس بخشا ہوا، کلام کو سب سے پہلا پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ میں کدھر ہوں اس جگہ پر. آمین. میں کدھر ہوں اس جگہ پر، میرے لیے یہ کیا کہہ رہا ہے، میں بائبل مقدس میں کہاں کہاں پر موجود ہوں. ہالےلویا. میرا نام کہاں کہاں پر موجود ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہر صفحے پر آپ کا نام موجود ہے. کہیں پر خداوند آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا چوپان ہوں، کہیں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، کہیں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے واسطے اپنی جان دی ہے، کہیں پر وہ کہہ رہا ہے آج کے خداوند کا روح مجھ پر ہے. ہالےلویا. اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوش خبری دینے کے لیے مسا کیا. آج خداوند ہمیں بہت امپورٹنٹ لیسن سکھانے جا رہا ہے جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. یہ ہماری بلاہٹ کے اوپر ہے. یسوع مسیح نے کلام کو پڑھا اور اس نے خود کو پہچانا کہ میں یہ ہوں اور مجھے خدا نے کس لیے بھیجا ہے. اس نے پڑھا اور اس نے پہچانا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے. اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. اس نے پہلے جانا کہ خدا کا روح میرے اوپر ہے، نمبر 1. پھر دوسرا اس نے جانا کہ اس نے مجھے مسا کیا ہے. ہالےلویا. اور اس نے جانا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے. تیسرا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے یہ سب کام کرنے کے لیے. آمین. نمبر 1 خدا کا روح مجھ پر ہے. نمبر 2 اس نے مجھے مسا کیا. اور نمبر 3 اس نے مجھے بھیجا ہے یہ سب کام کرنے کے واسطے. ہالےلویا. کلیسیا یہ جانے کہ جب ہی آپ مسیحی ہوئے ہیں یا آپ نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا ہے تو خدا کا روح جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹھہر گیا ہے. آمین. خدا نے آپ کو سنبھال لیا ہے. خدا کا روح جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹھہر گیا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. نمبر 2 اس نے مجھے مسا کیا ہے ایک خاص کام کے لیے. نمبر 2 پہ خدا ہر ایک شخص کو مسا کرتا ہے کسی خاص کام کے واسطے. آمین. جب ہم مسا کا لفظ دیکھتے ہیں تو مسا یا انوائنٹنگ ایک خاص حضوری ہے جو کسی خاص کام کے لیے ہوتی ہے. ایک خاص پاور ایک کسی خاص کام کے واسطے، ایک خاص پاور ایک خاص بلاہٹ کے واسطے، ایک خاص کام جو سونپا ہوتا ہے، ایک خاص کام جو دیا ہوتا ہے، اس کے واسطے جو خاص پاور ہوتی ہے اس کو مسا کہتے ہیں. آمین. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی مسا کیا جاتا تھا نبیوں کو، لوگوں کو مسا کیا جاتا تھا، خدا کے برگزیدوں کو، تو وہ تیل کے ساتھ کیا جاتا تھا.
तेल जो है वो मसा करने के लिए सब्सटेंस जो यूज होता था वो ऑयल था, वो तेल होता था, वो कोई और चीज नहीं बल्कि तेल होता था। और तेल की आप बनावट देखें तो उसको कुचल कर, उसको फ्रूट्स को कुचल कर निकाला जाता, ऐसा ही है। तेल जो है वो फ्रूट्स को कुचल कर जो है वो उसमें से निकाला जाता है, उसका रस या एक्सट्रैक्ट जिसे हम कह सकते हैं। और कुछ तेल जो है वो बड़े रिफाइन तरीके से रिफाइन किए जाते हैं और फिर वो सामने आते हैं। तो तेल का मतलब है कि ऐसी चीज जो बहुत रिफाइनिंग के बाद, प्योरिफिकेशन के बाद जो एक खास एक्सट्रैक्शन निकाली जाती है, खास रस निकाला जाता है। और तेल की एक और खास बात है कि उसका वो इतनी जल्दी जो है वो हवा में उड़ता नहीं है। पानी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो उड़ जाता है, लेकिन तेल जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आप मेरे साथ हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो इब्तदा ही से हम देखते हैं कि खुदा ने मसा करने के लिए ऑयल बताया कि ऑयल से मसा होना चाहिए। आमीन। और खुदा ने बताया कि इस ऑयल से मसा होना चाहिए, लेकिन ऑयल जो है वो खास तौर पर इस मसा की चीजों में इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। और जैसे मैंने बताया मसा क्या है, आपको समझ आई है? मसा वो पावर है जो हमारी बुल्लाहट के ऊपर होती है। जिस खास काम के लिए, वो खास पावर जो खुदावन ने खास काम के लिए बख्शी होती है, उसको मसा कहते हैं। और कलाम में लिखा हुआ है कि हम सबको खुदा ने मसा किया है। आमीन। खुदा ने हम सबको मसा किया है रूह में। लेकिन हम जब जमीन पर जो है वो उस ऑयल को अपने ऊपर लगाते हैं, तो हम उस मसा को जो हमने रूह में पाया होता है, हम जमीन में मैनिफेस्ट करते हैं। आमीन। मेरी बात समझ आ रही है? रूह में खुदावन ने जो कुछ हमें बख्शा हुआ है, उसे हम जमीन पर मैनिफेस्ट करते हैं। हालेलुया। तो खुदा ने हर एक को अनॉइंट किया है किसी ना किसी खास काम के वास्ते। और यीशु मसीह ने कलाम में से पढ़ा, उसने ढूंढा कि ये मेरे लिए है कि मुझे उसने गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने देखा कि यशाया 61 में ये लिखा है, ये तो मैं हूं। आप कैसे कलाम को पढ़ते हैं? जब पढ़ते और सुनते हैं कि आपको नजर आएगी ये तो मैं हूं, ये तो मेरी सूरत है, ये तो मेरे लिए लिखा गया है। यीशु मसीह ने खुद को कलाम में से ढूंढा कि वो किधर है। हालेलुया। इसलिए हर एक को खुदावन ने एक खास काम के वास्ते मसा किया हुआ है, हर एक को। आमीन। और जब खुदावन मसा करता है एक खास चीजों के लिए, खास काम के वास्ते, तो उसकी बहुत सारी निशानियां और पहचान है कि उस चीज को खुदावन ने करने के लिए उस शख्स को अलहदा किया है, ठहराया है। आमीन।
खुदावन जिस किसी को भी चुनता, आप जानते हैं कि बादशाहों को भी जब चुना जाता था तो उन्हें तेल के साथ मसा किया जाता था, नबियों को चुना जाता था तेल के साथ मसा किया जाता था, खुदावन के लोगों को चुना जाता था उनके तेल के साथ मसा किया, क्योंकि तेल ऐसी चीज है, तेल ऐसी निशानी है जो जिससे मसा किया जाता है। तेल ऐसी चीज है जिससे जो जाहिरी निशान है मसा का। आमीन। तेल मसा का जाहिरी निशान है। तो खुदावन ने जिन जिन को तेल के साथ मसा किया, उनके बाद उनकी जिंदगी के हालात जो है वो चेंज होना शुरू हो गए। और कलीसिया मैं आपको बताऊं, हमने खुदा का रूह हम पर है, हमने मसीह की निजात हासिल कर रही है, तो यहां पर काम खत्म नहीं हो गया, बल्कि एक अगला स्टेप है उस मसा को पाने का और उस मसा में आगे बढ़ने का। अब मेरे साथ हैं, मसा में बढ़ने का अगला स्टेप है। खुदावन ने हमें जिंदगी दी है, यीशु मसीह को हमारे वास्ते दे दी और हमने निजात पाई है और हम रेगुलर चर्च आते हैं। यहां पर खत्म नहीं हो गया, बल्कि मसा में बढ़ना एक अलग स्टेप है। अपने साथ वाले को बोलो कि मुझे मसा में बढ़ना है। मसा मैंने आपको बताया वो ताकत है जिसके लिए खुदावन ने आपको भेजा, वो खास काम के लिए, वो पावर जिसके लिए खुदा ने आपको भेजा, उसमें हमें बढ़ना होता है। आमीन। ताकि वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग जो है वो हमें बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। हालेलुया। वो पावर, वो डेडिकेशन, वो कुवत जो है वो हमें बढ़ती चली जाए, इसको मसा में बढ़ना कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि खुदा ने हमें मसा किया हुआ है, लेकिन हम ग्रेस में बढ़ते हैं, ना कि मसा में। आमीन। हम मेरे साथ हैं। खुदा ने हमें मसा कर दिया है ऑलरेडी, उसने हमें चुन लिया और मसा कर दिया है, क्योंकि मसा एक ही बार किया जाता है। लेकिन हम जो बढ़ते हैं वो हम फजल में बढ़ते हैं। फजल खुदा का बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है हमारी जिंदगी पर। और वो फजल जो आता है वो उस मसा के सबब से आता है जो खुदावन का हम पर होता है। उस मसा के सबब से फजल हमारी जिंदगी में बढ़ता चला जाता है। फजल का मतलब है जिस चीज के हम हकदार ना हो, ग्रेस में, पावर में, अकल में, दानाई में, कुवत में, हिकमत में, टेरिटरीज में बढ़ते जाना। हालेलुया। हमारी बढ़ोतरी जो है, हमारे फजल का बढ़ना जो है, उस मसा की वजह से होती है जो खुदा ने हमें हमारे पैदा होने के पहले से मसा किया हुआ। हालेलुया। हमारे दुनिया में आने से पहले से खुदावन ने हमें मसा किया हुआ है। लेकिन हम जब आते हैं तो हम उस मसा को पहचानते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने पहचाना कि उसने कहा कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है, मुझे अलहदा किया है। लेकिन उसके बाद अगला स्टेप होता है उस मसा में, उस कुदरत में बढ़ना। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि हम उस मसा में, उस कुदरत में कैसे बढ़ सकते हैं, उस फेवर में कैसे बढ़ सकते हैं जो हमें चाहिए, जिसके लिए खुदा ने हमें अलहदा किया है। और उसमें हम बढ़कर जो है वो अपने आप को वो काम करने के लिए, वो काम कैसे कर सकते हैं जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। हालेलुया। तो जो काम, जिस काम के लिए खुदावन ने हमें बुलाया है, उसको हम उस नंबर 1 मसा के बगैर नहीं कर सकते। और उसका हमें पता होना जरूरी है कि इस काम के लिए खुदा ने मुझे मसा किया है। नंबर 2, उसको हम उस फजल के बिना नहीं कर सकते जो खुदा की हुजूर से जारी होता है। और फजल जो है वो सिर्फ मसे वाली जगहों पर आता है। आमीन। खुदा का फजल सिर्फ उन लोगों के लिए जारी होता है जिनको उसने मसा किया हुआ। आमीन। और आज होली स्पिरिट हमें बताएगा कि हम उस फजल में कैसे बढ़ सकते हैं।
हालेलुया। यीशु मसीह ने पहचाना कि ये मेरी बाबत लिखा हुआ है, कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, कैदियों को रिहाई देने के लिए, अंधों को बेनाई देने के लिए, कुछ लोगों को आज़ाद करने के लिए, खुदा के साल की मुनादी करने के लिए उसने मुझे अलहदा किया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये जाना कि मेरी ये बुलाहट है, तो उसके बाद के स्टेप्स हैं जिस फजल में आगे बढ़ने के। आमीन। हमारी कुछ भी बुलाहट है और हमें खुदा ने किस खास काम के लिए मसा किया हुआ है, और खुदा हमें बुलाता है कि हम फजल में आगे बढ़ें, और जितना हम फजल में, मसा में हम जानते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी कुव्वत बढ़ती जाती है, उतने हमारे दुश्मन छोटे होते जाते हैं, उतनी हमारी प्रॉब्लम छोटी होती जाती है, क्योंकि हमारा फजल बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। फजल का मतलब है वो चीज़ें जिसके हम हकदार नहीं हैं, वो पावर, वो कुव्वत, वो फेवर। हमारी फेवर जब बढ़ती चली जाती है तो हमारे दुश्मन ऑटोमेटिकली छोटे होते चले जाते हैं। कलाम में लिखा है कि मसा के सबब से जुए तोड़े जाते हैं। आमीन। मसा के सबब से जो फजल जारी होता है उसके वजह से जुए जो है तोड़े जाते हैं। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे जुए हमारे मसा के सबब से टूटे जाएंगे। आप मेरे साथ हैं? हमारे जुए, हमारे ऊपर जो मसा है उसके सबब से तोड़े जाएंगे, क्योंकि हर एक को खुदावन ने मसा किया हुआ है एक खास काम के लिए, और आपके पास ही खुदावन ने उसकी कुंजी भी दी हुई है उन जुओं को तोड़ने की। और वो आज होली स्पिरिट बता रहा है कि उस फजल में आगे बढ़ने की जिसके लिए खुदावन ने हमें बुलाया है। आप मेरे साथ हैं? आगे बढ़े। तो आज पाकरू हमें सिखा रहा है कि हमारे मुश्किलों की, मुसीबतों की, जुओं की जो कुंजी है, उनको तोड़ने की जो चाबी है, वो खुदावन ने हमारे मसा के ऊपर रखी है। हालेलुया। और मैं एक चीज आपको बताता चलूं, आपके ऊपर जो मसा है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो कोई मसा शुदा है उस पर प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होती हैं, उसकी तरफ भागती हैं, उसकी तरफ आती हैं। आप दाऊद को देखें, दाऊद छोटा ही था जब वो मसा किया गया। दाऊद की जिंदगी बड़ी खुशहाल थी, लेकिन यूं ही सैमुएल ने आके उसके ऊपर ऑयल डाला, उसकी जिंदगी खराब होना शुरू हो गई। उसके दुश्मन बढ़ना शुरू हो गए, अपने घर वाले उसके दुश्मन हो गए, हता कि वहां का बादशाह उसका दुश्मन हो गया। उसकी जान लेने के लिए जो है वो हर वक्त इस डर पे था कि उसकी जान ले, उसको खत्म करे। ये उस ऑयल की वजह से था जो उसके ऊपर रखा गया। आमीन। इसलिए मसा जो है वो दुश्मनों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दुश्मन जीत जाएंगे। हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं है कि दुश्मन जो है वो फाते होंगे, लेकिन मसा जो है वो दुश्मनों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन आपको याद हो कि साउल ने, जो बादशाह था, उसने दाऊद पर 2 बार अपने भाले से हमला किया कमरे में। और कमरे में भाले से हमला करना जो है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो दूर तक जो है वो लोगों को मार सकते थे, लेकिन कमरे में तो इजीली वो किसी को भी मार सकते। और बिन्यामीन जो कबीला था, उनका काम ही जो है वो ये था कि वो शिकार करे।
اور ان کے جو مارے گئے جو نشانے تھے وہ مس نہیں ہوتے تھے. لیکن کیونکہ داؤد کے اوپر مسا تھا, وہ آئل تھا, اس وجہ سے جو موسٹ ٹرینڈ جو ہے لوگ ہیں, جو موسٹ ٹرینڈ دشمن ہیں آپ کے, ان کے بھی حملے آپ کے اوپر پورے نہیں اتریں گے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. وہ شکاری تھا اور وہ اس نے 2 بار اس کو مارنا چاہا, لیکن وہ ہٹ گیا, پیچھے سے آگے سے ہٹ گیا. وہ جب خداوند کی فیور آپ کے اوپر ہے تو کوئی شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یسوع مسیح کے نام سے. میں نے کہا کوئی شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یسوع مسیح کے نام سے. پھر جتنے مرضی دشمن آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں, میٹر نہیں کرتے. خداوند ہمیشہ آپ کو اس دوران میں صرف یہی بتاتا رہتا ہے کہ تو مسح شدہ ہے. ہاللیلویا. کہ کتنے اس کی جان کے در پہ تھے, کتنے اس کی جان کو, اس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی اس کی جان کی, کہ جو کوئی اس کو مارے گا اس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی کہ ساؤل اس کو اپنی بیٹی دے گا, اور بہت سی اور قیمتیں جو ہے وہ اس کو ٹھہرائی گئی تھی. لیکن کیا خداوند کا ممسو جو ہے وہ خداوند کے ہاتھوں میں ہمیشہ محفوظ رہے گا. ہاللیلویا. آپ کا مسح, میں نے کہا ہے, آپ کی پروٹیکشن کرے گا یسوع کے نام سے. آپ کے اوپر جو مسح خداوند نے رکھا ہے وہ ہمیشہ آپ کی پروٹیکشن کرے گا, وہ آپ کی حفاظت کرے گا جہاں کہیں آپ جائیں گے. خداوند نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے, ہمیشہ عمر بھر بھلائی اور رحمت میرے ساتھ ساتھ ہوں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند نے آپ کے سر پر تیل ملا ہے. وہ تیل جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرے گا, آپ کی پروٹیکشن کرے گا, آپ کی بھلائی کرے گا, آپ کے لیے رحمت کا سبب ہوگا. آپ میرے ساتھ ہیں. یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے جانا کہ وہ مسح شدہ ہے, اس لیے نمبر 1 پہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں مسح شدہ ہوں. اور کلام آج آپ کو بتا رہا ہے کہ ہر کوئی جس نے مسیح کا بپتسمہ لیا وہ مسح شدہ ہے. اپنے ساتھ والے کو بولو کہ آپ مسح شدہ ہو. نمبر 2, فضل ہر اس بندے کے لیے جاری ہے جو مسح شدہ ہے. اپنے ساتھ والے سے بولو آپ کے لیے خدا کا فضل جاری ہے. لیکن فضل میں بڑھنا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. خداوند ہمیں فضل میں بڑھاتا ہے. آمین. فضل میں ہم بڑھتے ہیں, بڑھتے ہیں, بڑھتے ہیں, بڑھتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہم مسح شدہ ہیں اور خدا کا فضل ہم پر ہے. یہ کافی نہیں ہے, بلکہ خدا نے ہمارے لیے ٹھہرایا کہ ہم اور زیادہ بڑھیں اور جانیں اور جانیں اور خدا کے ساتھ رہیں. اور کچھ سٹیپ میں آج آپ کو بتاؤں گا فضل میں کیسے بڑھیں اور اس مسح کو جو آپ کے اوپر ہے کیسے کام کرنے دیں. آمین. تو جو فضل خدا نے ہماری زندگی پر رکھا ہے اس میں خدا ہمیں بڑھنے کے لیے بلاتا ہے, اور اس کے لیے نمبر 1 جو سٹیپ ہے وہ کلام پڑھنا ہے. کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر فضل بڑھتا چلا جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہاللیلویا. ہم کون ہیں, ہم کیا کریں گے, ہمیں خداوند نے کس واسطے رکھا ہے, خداوند نے ہمیں کدھر رکھا ہے. ہم اس فضل میں بڑھتے ہیں جس کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہوتا ہے. تو نمبر 1 جو فضل میں بڑھنے کا طریقہ ہے وہ کلام پڑھنا ہے. آمین. نمبر 2 دعا کرنا, خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا, کیونکہ جس نے آپ کو مسح کیا ہے وہی آپ کو اس کام کے لیے جس نے آپ کو بھیجا ہے وہی آپ کی رہنمائی کرے گا. نمبر 1 کلام پڑھنا, نمبر 2 دعا کرنا. آمین. اور نمبر 3
अपने चर्च से, अपने खादमों से जुड़े रहना, उस मसा में, उस ग्रेस में आपको फ्लो कराएगा जिसके लिए खुदावन ने आपको मुकर्रर किया है। और आपका ग्रेस बढ़ता चला जाएगा, आपका फजल बढ़ता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम कलाम ना पढ़ें और दुआ भी ना करें और हम एक्सपेक्ट करें कि हम फजल में बढ़ते चले जाएं। नहीं, हमें बहुत ज्यादा कलाम पढ़ना होगा अपने टास्क को पूरा करने के लिए। आमीन। हमें बहुत ज्यादा दुआ करनी होगी, हमें बहुत ज्यादा खुदा के साथ रहना होगा, हमें बहुत ज्यादा जो है वो कलीसिया के साथ रहना होगा, हमें बहुत ज्यादा खादमों के साथ रहना होगा, अपने आप को जानने के लिए, अपने काम को, अपने फजल को पूरा करने के लिए। नो मैटर आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, खुदावन ने आपके ऊपर मसा रखा हुआ है ताकि उस मसा से आप अपने एरिया में जो है वो खुदावन का नूर बने। अपने एरिया में, अपने लोगों में, जहां पर खुदा ने आपको रखा है, बेशक टीचिंग है, बेशक डॉक्टरी है, बेशक कुछ भी है, उनमें खुदावन ने आपको खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उनमें जो कैदी हैं उनको रिहाई देने के लिए मसा किया है। उनमें जो कुचले हुए हैं उनको खुदावन ने आजाद देने के लिए आपको मसा किया हुआ है। हालेलुया। आपके एरिया के लिए खुदा ने आपको रखा है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ एवेंजलिस्ट का काम खुशखबरी सुनाना नहीं होता, सिर्फ मुबश्शिर का काम खुशखबरी सुनाना नहीं है, हर एक का काम खुशखबरी सुनाना है। क्योंकि आपको खुशखबरी मिली है, आपको उस खुशखबरी को आगे फैलाना है। बेशक आप टीचर हैं, बेशक आप ड्राइवर हैं, बेशक आप कहीं पे भी कोई भी काम करते हैं, खुदावन ने आपको खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। खुदावन ने आपको खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है। और चौथी चीज मैं आपको बताऊं, नंबर 1 कलाम पढ़ना, दुआ करना, खादमों से जुड़े रहना। चौथी चीज खुशखबरी देना, जिसकी वजह से आपका फजल बढ़ता। खुशखबरी देने से आपका फजल बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। आप मेरे साथ हैं? मैं आपको बताऊं, खुशखबरी देना ऐसा मैटर है, ऐसी चीज है, जब आप खुशखबरी दे रहे हैं तो खुदावन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके फजल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जिन चीजों को आपने तजर्बा नहीं भी किया, आप फिर करेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप अपने मुंह से उसका इकरार कर रहे हैं। हालेलुया। आप उन चीजों का इकरार कर रहे हैं अपने मुंह से। आप खुदावन यीशु मसीह के खुदावन होने का, निजात दहिंदा होने का इकरार कर रहे हैं। और जो कुछ भी आप दूसरे के लिए बोल रहे हैं, वो आपकी अपनी जिंदगी के लिए बोया जाएगा। आप मेरे साथ हैं? जो कुछ आप दूसरे के लिए बोल रहे हैं, खुदावंद आपके लिए वो करेगा। खुशखबरी एक बहुत पावरफुल टूल है। आप मेरे साथ हैं? दूसरों को कलाम सुनाना एक इतनी पावरफुल चीज है जो आपकी बरकतों को फास्ट कर देती है। आमीन। जो आपकी शिफा को फास्ट कर देती है, जो आपकी जिंदगी को, आपकी हर एक चीज को फास्ट कर देती है, क्योंकि आप दूसरों के लिए बायसे बरकत हो रहे हो। और कलाम में क्या लिखा है? दिया करो तुम्हें भी। खुशखबरी ऐसा टूल है कि वो आपको ब्लेस कर रही होती है। एक्चुअली आप दूसरे को ब्लेस कर रहे हो, लेकिन असल में वो आपको ब्लेस कर रही है। कलाम में लिखा है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप दे रहे हैं और खुदावन आपको और देता जा रहा है। जितना कुछ आपको अपने खुदावन के बारे में पता है, अपने खुदावन को एडवर्टाइज करें दूसरी जगहों पर। हालेलुया। अपने खुदावन को दूसरों को बताएं कि मेरा खुदावन ऐसा है, वो आपके लिए ये कर सकता है, वो आपके लिए ये कर सकता है। एक अपोस्टल कहते हैं कि वो खुद बीमार थे और जब वो दूसरों के लिए प्रे करते तो वो ठीक हो जाते। वो खुद बीमार ही रहते वो, और वो खुदावन से पूछते, खुदावन तू मेरी कब सुनेगा?
अगर आप खुद किसी बीमारी में, किसी परेशानी में मुब्तला हो, लेकिन दूसरों को बताओ कि खुदावन ठीक करेगा, हालेलुया, अपनी की तरफ देखकर रुक ना जाए कि मेरे साथ ऐसा है, मुझे खुदावन ने ठीक नहीं किया। दूसरों को कह के आपको खुदावन ठीक करेगा, और मैं आपको बताऊं उनको खुदावन ठीक कर देगा आपकी खुशखबरी के सबब से। हालेलुया। खुशखबरी इतना पावरफुल टूल है, इतना इतना पक्के ईमान की चीज है कि वो दूसरे के लिए वो सब कुछ कर रहा है खुदावन, लेकिन आपको पॉज पे रख रहा है ताकि आपका ईमान और बढ़े। हालेलुया। ऐसे याद रखें कलीसिया, खुदावन हमें ग्रेस में बढ़ाना चाहता है। खुदावन चाहता है कि हम बहुत पावरफुल हों, बहुत वंडरफुल काम करें, लेकिन आज खुदावन बता रहा है कि हम ग्रेस में कैसे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें। दुआ में टाइम गुजारें, और दुआ मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। आप मेडिटेशन कर रही हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ये प्रेयर है। आप सोच रहे हैं, ये भी प्रेयर है। आप खुदावन के साथ बातें कर रहे हैं, ये भी प्रेयर है। लेकिन बोल कर भी प्रेयर है। आप कलाम सुन रहे हैं, ये तीसरी चीज है। और चौथी चीज, खुशखबरी को फैलाना आपके ग्रेस को बहुत ज्यादा कर देगा। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं कि जितना हमारा ग्रेस, हमारा फजल ज्यादा होता जाता है, उतने हमारे दुश्मन, उतनी हमारी प्रॉब्लम छोटी होती जाती है। आमीन। क्योंकि जितना कलाम में लिखा हुआ है कि वो रूह में, हिकमत में, दानाई में, फजल में बढ़ता गया। तो जब फजल, इत्मीनान, खुशी, रूह, दानाई, हिकमत बढ़ेगी, तो जो बाकी चीजें हैं, जो तारीकी की चीजें हैं, वो कम होती जाएंगी। हालेलुया। बाकी हर एक चीज जो है वो खुद ब खुद कम होती जाएगी और खत्म होती जाएगी। फिर बीमारी आपका ऐसे पीछा छोड़ेंगी, प्रॉब्लम में आपका ऐसा पीछे छोड़ेंगी कि आपको पता भी नहीं होगा, और वो आप ठीक हुए होगे। आप कहेंगे मुझे पता भी नहीं लगा मैं कब ठीक हो गया हूं, मुझे पता भी नहीं चला कब ये चीज बन गई है, मुझे पता भी नहीं चला कब ये कुछ हो गया। क्योंकि आपने होमवर्क किया, आपने वो काम किया जो खुदावन ने बोला। हालेलुया। तो हर एक को खुदावन ने मसा किया है, लेकिन खुदावन कह रहा है कि फजल में आपको आगे बढ़ना है। और उस फजल में खुदावन के साथ, हेवन के साथ लिंक होने में। और कलीसिया, मैं आपको बताऊं, जब भी आप कलाम पढ़ते हैं, एक्चुअली आप यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे होते हैं, आज से 2000 साल पहले। क्योंकि जब भी आप कलाम पढ़ेंगे और लिखा होगा कि यीशु मसीह इधर से जा रहा था, तो आपकी सोच भी उधर से गुजर रही है। ऐसा ही है, आप भी उधर से गुजर रहे हो, और यीशु मसीह इधर से गुजरा और उसने ये देखा और उसने ये किया। आप भी उधर से गुजर रहे हो, आप उसमें जी रहे हो। आप एक्चुअली यीशु मसीह के साथ रह रहे हो। और जितना आप यीशु मसीह के साथ रहोगे, चलोगे, और वो कैसे चल सकते हैं? जब कलाम पढ़ते हैं तो हमारी सोच सारी की सारी उस वक्त चलती है जैसे हम यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं। और अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर बैठ गया, हम उसे देख रहे हैं कश्ती के ऊपर। हालेलुया। यह खुदावन के साथ रहना। और जब पुराने अहद में से आप गुजर रहे हैं, तो आप सारी वो एक फिल्म की तरह आपके अंदर चल रहा है, तो आप एक्चुअली उसमें रह रहे हो। हालेलुया। और आप जिसके साथ रहोगे आप वैसे बन जाओगे। हालेलुया। जिसके साथ आप चलोगे आप सेम नहीं रहोगे। जिसके साथ आप चल रहे हो उसके वादे आपको सेम नहीं रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज खुदावन जो बता रहा है कि हमें ग्रेस में आगे बढ़ना, हर एक को ग्रेस में आगे बढ़ना है। और ग्रेस में आगे बढ़कर खुदावन चाहता है कि आप
के ऊपर जो मसा है वो सारी दुनिया जाने, सारी दुनिया जाने, सारे लोग जाने कि ये मेरा मसा किया हुआ है। आमीन। तो कौन सी 4 चीजें हैं? नंबर 1 कलाम पढ़ना, नंबर 2 दुआ करना, खुदावन के साथ रहना, बातें करना, नंबर 3 खादमों के साथ रफाकत रखना, कलाम सुनना, और नंबर 4 खुशखबरी सुनाना, खुशखबरी सुनाना। आमीन। दूसरों को बताना कि खुदावन ऐसा है, वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, और वो सारी चीजें आपके लिए हो जाएंगी। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे के ऐ खुदावन, तूने मुझे मसा किया है जमीन पर तेरा काम करने के लिए। मैं तेरे फजल को मांगता हूं, मैं तेरे फजल में भरता चला जाऊं, तेरा फजल मेरी जिंदगी में भरता चला जाए, तेरी कुव्वत मेरी जिंदगी में भरती चली जाए। मैं तुझसे मांगता हूं, मुझे बढ़ाए लिए चल। आज जैसे मैंने सीखा है, मुझे कलाम पढ़ने में, दुआ करने में, रफाकत रखने में और खुशखबरी फैलाने में मेरी मदद कर, ताकि मेरा ऑयल भरता जाए, ताकि मेरा ऑयल भरता जाए, ताकि मेरी कुव्वत भरती चली जाए, ताकि मेरा फजल भरता चला जाए, ताकि मैं भरता चला जाऊं, ताकि मैं दुनिया के लिए नूर ठहरूं, ताकि मैं अपनी बुलाहट पूरी करूं, ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बेनाई दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं और तेरे साल की मुन्नादी करूं। अगले 1 मिनट के लिए ये दुआ करें भरपूर कलीसिया। राका काका यस्से ने मेरे ओ साहब, राबा बाबा ले बेरे 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 ओ शाह, खुदावंद ग्रेस दे रहा आपको भरने के लिए। रियाम पासा खाया यह बारा बारा साहा, बढ़ने के लिए ग्रेस दे रहा है। ये आपकी बढ़ोतरी का साल है, ये आपके बढ़ने का साल है, हर रोज बढ़ने का साल है, कुव्वत पाने का साल है, रिया पासना से शियोजो को लोब्रो हो, ताकत पाने का साल है। मियांदा का प्यासा कोलो ब्रोसो शिशिया, खुद को जानने का साल है। रिया पापा आप खुद को जानोगे। जब आप कलाम पढ़ोगे तो आप अपने आप को देखोगे, अपने आप को ढूंढोगे, आप किधर हो। रबाबा का ये रे बे 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 बेश रिब्रास्ताक्षिनी मियोस्तो होलो ब्रताशिया रिया माना मा बा 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 रिया का बा 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 बा। मेरे पीछे के या खुदावन, अब जब मैं कलाम पढ़ता हूं, अब जब मैं कलाम सुनती हूं, तो मुझे दिखा मैं कहां कहां हूं, मुझे दिखा कि मुझे क्या करना है, मुझे दिखा कि मेरी जिंदगी पर वो कैसे लागू होता है। मैं जब कलाम पढ़ूं तो खुद को ढूंढूं, मैं खुद को पहचानूं। आज से तेरा ये फजल मुझ पर जारी हो जाए। मुझे दिखा कि तूने मुझे किस लिए भेजा है, मुझे दिखा कि तेरा फजल क्या है मुझ पर। अगले 30 सेकंड के लिए इस प्रेयर के मुताबिक दुआ करें। रिया पातास्तेनी जोदोहा रिया काया बाबा बाला बाबा बाबा, फजल में भरो यीशु मसीह के नाम से, कुव्वत में भरो यीशु मसीह के नाम से, ताकत में भरो यीशु मसीह के नाम से, पहचान में भरो यीशु मसीह के नाम से। रिया पापरासन में हो शोसिया, हर एक कलाम, हर एक आयत आपको बढ़ाए, पेवस करे, यीशु मसीह के साथ रहने वाले हो। रिया नबासा को रोबो रोयोशिया improno colo prosini miho sokolo prasaya ria karabasa karabasa chiono mosioho ria karaba ba 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 ba। पावर में भरो यीशु मसीह के नाम से, पावर में भरो यीशु मसीह के नाम से, ग्रेस में भरो यीशु मसीह के नाम से। रिया डखाया कलाम की गहराइयों में भरते जाओ यीशु मसीह के नाम से।
Isabale bele bele be shabale bele 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 osha. Kya sakaro boroshiah. रिया मानोसिया ग्रेस आप पर बढ़ता चला जाए यीशु मसीह के नाम से। इब्रानो सोको तो फोरियोशिया। बाप तेरा शुक्र हो आज के कलाम के सबब से तेरे लोग फजल में बढ़े, दनाई हिकमत कुवत में ताकत में बढ़े यीशु के नाम से। उस मसा को पूरा करें जो जिसमें ये बुलाए गए हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन।